ग्रेट। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। वेलकम एंड शुभ संध्या। ओके, सो am I audible? Am I visible? क्लियर आ रहा है? Am I clear? Yeah, we can have some cameras on. Maybe yes. Okay, I can see you. Okay, some new faces, some known faces. आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम एंड ग्रीटिंग्स। और जरा सा एक्चुअली हमारे यहाँ शिमला में पता नहीं कुछ अलर्ट वगैरह है, सो दे वर सेइंग देयर सम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई देयर इज सम वर्क गोइंग ऑन। बट वी हैव दिस इमरजेंसी लाइट जिसमें हम ये क्लास ले रहे हैं, पर अंधेरे का अलग मजा है। एक परिणीता में गाना था ना, बहुत सुंदर था, रात हमारी तो चांद की सहेली है। तो वैसा ही वाला वाइब है यहाँ पे। ठंड है, ठंड तो है नहीं, इट्स नॉट दैट कोल्ड थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन दो, पता नहीं व्हाट इज द सिचुएशन लाइक। इट्स नॉट कोल्ड, इट्स जस्ट अ पतला स्वेटर आई एम वेयरिंग। तो उतना नहीं है ठंड, हमने बस सर्दी का एक मजा ले रहे हैं, बस उतना नहीं है जितना होना चाहिए। And they're doing some electricity work, I don't know. So I'm like, okay, we have the emergency light. So I'm audible and visible ना? ठीक है। चलिए। So आज सुबह हम लोगों ने साधना की, बेसिक पवन मुक्त आसन्स किया, we understood what योग is all about and what we are going to do. Tomorrow morning also we'll be doing some sukshma vyayam just to open up and lubricate your joints and just open up the flow of energy. And Monday onwards, we'll be formally starting off with the Mercury Vinyasa. You'll be seeing that one day we do a lot of asanas, the second day we'll do more of pranayams, specifically working on the planets. Today, I think it's an open session, somebody said, I don't know, whatever. I will talk about a very interesting fundamental concept which has extractions from the knowledge of Upanishads. Upanishads, जरा सा इंटरनेट अगर ब्रेक हो रहा है, आई थिंक जरा सा ब्रेक होगा, एक सेकेंड। आई चेंज द इंटरनेट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। या नाउ इट्स कमिंग। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज इट। या आई चेंज्ड इट नाउ, आई थिंक अब बेटर आना चाहिए। जरा सा ब्रेक होगा बिकॉज आई एम यूजिंग अ डिफरेंट डिवाइस। बेटर नाउ? या okay, okay, let's start. So, we'll be talking about some concepts of the Upanishads linked with the understanding of energy and the understanding of reincarnation and what exactly is the fundamental of astrology. Because many people say it works, it does not work, there's belief system. There is no belief system regarding it. It is as clear as science if we understand it from a scientific viewpoint. Before that, I will just chant because it's the first class. I'll be chanting the Guru Mantra, taking permission from the Gurus to commence this program. Because whatever I say, we are just mediums. As I tell you, it's the Guru Gyan which is flowing through us. Okay. So I'll just chant the Guru Mantra and right away talk about the concept. Just give yourselves a moment of reverence, bowing down to the Guru Tattva through which knowledge flows. So you can join your palms like that in Anjali Mudra. You can touch these two thumbs on the anahat if you feel like. There's a logic behind it. We'll talk about it later. Just touch it in this bar and just feel the gratitude, the surrender, the reverence for the Guru Tattva as I chant the Guru Mantra. Om. अखण्डमङ्गलाकारम् व्याक्तं येन चराचरम् तत्पदनदर्शितं येन तस्मै श्रीवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। Okay, it was start. Okay, whenever we try to understand the concepts of astrology, the first thing that we focus is the concept of bhagya. The concept of bhagya. What defines that? What is this concept? We'll understand it with understanding the concept of karma. Just a second. The entire science of astrology revolves around the concept of karma. Just a moment. What's happening today? Yeah, just give it to me. The concept of astrology revolves around the concept of karma. Karma doesn't only mean action. Today we'll understand what is the science of karma. Let us understand first point, karma as an impulse of energy. So we'll understand the whole concept by understanding karma as energy. So let me draw a diagram through which we'll understand this and go ahead. Okay? Light has come, I guess. So can you all see this? So when we talk about the concept of karma, the concept of karma, light has come to take this. Let's understand karma as an energy, a form of energy, an impulse of energy. Okay? Karma is energy. There is a concept in science which says the law of conservation of energy. Energy is not created nor destroyed. It is only changing its forms. That we know. पहले इस concept को we'll understand. What is this talking about? Energy in science is not created nor destroyed. So जो हम use करते हैं ना आदि योगी, आदि अंत, आदि means it has always been there. Nothing is created. Nothing is created. It is coming from already an existing form, again going back to it. It's always been there, it will always be there. But the in between is changing from point of view. Sight falls, sunlight falls. This energy gets converted in the leaves. Light falls, this becomes chemical energy. Yes or no? Yes? This chemical energy creates some compound, some starch, something, it is created. And this energy gets stored into, let's talk about एक गाजर, ठीक है? Let's draw it in a red color. So this energy gets stored as a carrot. अभी गाजर बड़ा fresh आ रहा है बाजार में. So this chemical energy gets stored as a carrot, and this carrot has some chemical energy. Okay? We go to the market, we buy the carrot and we eat the carrot. And after eating the carrot, we get some energy from it. Now, after eating the carrot or a banana or your rice or your paratha, that chemical energy gets converted in your body system into your
muscular energy through which I'm talking to you. And I'm talking to you, you are listening to me. Here also, this voice that is coming out is it's also an energy that is happening. Yes or no? जो मैं आवाज निकाल रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो एनर्जी. इसमें अभी ऑल कौन कौन सा एनर्जी आ रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है. आई एम यूजिंग इट एंड द इंटरनेट इज ऑल्सो देयर एंड दिस इज गोइंग टू यू. You are listening to me and there is some change in your brain that is also going on as a chemical signal. So the sun's light, which transformed into a food material, I'm using the muscular energy and it's going to you through the net. So constantly we are exchanging energies. इसको विजुअलाइज करिए, समझिए इस बात को. हर क्षण, हर इमोशन, हर एक फीलिंग, हर एक फूड मटेरियल इज नथिंग बट एनर्जी. यस और नो? है कि नहीं? सीधी बात है. आप टेस्ला, निकोला टेस्ला जी को जब आप पढ़ेंगे साइंस में, कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट को पढ़ेंगे, वो यही बोलते हैं तुम्हारा लाइफ सरल हो जाएगा जब तुम दुनिया को एनर्जी की तरह देखो. सो द माई फीलिंग्स राइट नाउ आर व्हाट? एनर्जी. योर moods and emotions are energy. Everything around is energy. Similarly, there are many cosmic energies also that we cannot see. Astrology is a science of tapping into this energy. Okay? In astrology, no rocket science. Just understand the energy patterns. Any spiritual science talks about knowing this. वास्तु में क्या बोलते हैं? हम अर्थ की एनर्जीज को समझते हैं. एस्ट्रोलॉजी में कॉस्मिक एनर्जी, योग में इंटरनल एनर्जीज को, स्वर योग में आपके ब्रेथ के एनर्जीज को. द होल स्पिरिचुअलिटी, प्राणिक हीलिंग इज ऑल्सो एनर्जी. तंत्र इज ऑल्सो एनर्जी. तंत्र, जप, मंत्र, पूजा, पाठ, साधना, एवरीथिंग दैट इज इवन वन आयोटा ऑफ स्पिरिचुअल इज एनर्जी. सारा खेल उसी का. फेंगशुई एनर्जी, डायरेक्शन एनर्जी, देवी एनर्जी. और यही हमारी जो पुरुष प्रकृति का कॉन्सेप्ट, इसमें मैं भी आऊंगा, इज नथिंग बट मैनिफेस्टेड एनर्जी विच वी आर टैपिंग इन. ठीक है जी? तो ये समझ आया, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड एनर्जी. अब आप बोलेंगे ये आया कहां से? लेट अस गो इनटू दैट कॉन्सेप्ट. जरा सा योग को टच करते, फिर हम फिर से एस्ट्रोलॉजी में आएंगे. सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट दिस एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मास एंड वे बैक. ये होता रहता है. इसको आइंस्टाइन ने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बोला है इन साइंस. इन वेदास इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द वेदास. ये कोई पुरानी बात नहीं है. इसी को हम अभी समझेंगे एक फिलोसफी में. ठीक है जी? ये मेंशन्ड है. इट्स नॉट, दिस इक्वेशन इज आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्विवेलेंस, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू द वैदिक साइंस. लेट अस गो टू वन ऑफ द दर्शन विच इज कॉल्ड सांख्य फिलोसफी. जरा सा इसमें आपको अटेंशन पे करना पड़ेगा क्योंकि जरा सा डीप बात है. उपनिषद समझाना इतना आसान नहीं. मुझे भी कई बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके समझ आता है. प्लीज पे अटेंशन. वी वांट कंप्लीट अटेंशन. है ना? पूरा एकदम सीधा बैठिए और समझिए क्या बात हो रही है. ये लेट के नहीं हो पाएगा अगर कोई लेटे हुए हैं तो. ये ज्ञान बहुत पावरफुल है, बहुत. अगर छू गया ना, आपको बैठे बैठे लिबरेशन हो जाएगी. योग की जरूरत नहीं है. अगर आपने रियलाइज कर लिया ये नॉलेज, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम लिबरेटेड. लेट मी जस्ट चेंज द इंटरनेट. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओ, कनेक्टेड हो गया? नहीं. हम्म. ये एक बिंदु है, डॉट है. ठीक है? कैन यू ऑल सी दिस बिंदु? ये बिंदु है. लेट अस से दैट दिस बिंदु हैज इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी?
फॉर एग्जाम्पल इसके पैरेलली मैं आपको समझाता हूं। यहां पे एक डैम है। डैम पता है क्या होता है? बांध। इस बांध में बहुत सारा पानी है, ठीक है। और ये गेट है बांध का, जिसको आपने लॉक करके रखा है। तो यहां पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल ये पेन मेरे हाथ में है, मैंने इसको पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहा। वॉट एनर्जी डज इट हैव? इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। आई लीव इट, इट इज काइनेटिक एनर्जी, है ना? एमजीएच पढ़ा है फिजिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच, है ना? पोटेंशियल एनर्जी। So, which is not moving, which is stored, it is potential energy. Like a huge dam and the gates are closed, it has potential energy. ठीक है? Imagine that this bindu has infinite potential energy, which is in a state of absolute static equilibrium. You know what is static equilibrium? ये शब्द सुना है आप लोगों ने? स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? सेम एग्जांपल बांध ले लीजिए, ह्यूज डैम एंड द वाटर इज स्टैटिक, इट्स नॉट मूविंग, इट्स देयर। एक बड़े ड्रम में पानी, एक बाल्टी में पानी है, वो बस स्टैटिक है, इट्स नॉट मूविंग। क्लियर? अब आपने क्या किया? उस बाल्टी में एक छेद कर दिया और यू ओपन द गेट ऑफ द डैम। व्हाट डिड आई डू? आई ओपन द गेट ऑफ द डैम। कैन वी डू दैट? लेट्स डू इट। सो when we open the gate of the dam, what happens? What happens? The energy, the water starts flowing. Yes or no? Flow होता है कि नहीं? So as the energy or the water starts flowing, it potential energy changes into kinetic energy. Yes or no? So let us assume the same thing in this bindu, that okay, there was this beautiful bindu from which you opened up a gate and a vibration of energy moved out in a linear fashion. It goes on and on and on because the source is infinite. ठीक है? विजुलाइज करिए, बाल्टी में अनंत पानी है और आपने क्या किया? उस बाल्टी में छेद कर दिया, तो पानी बहने लग जाएगा। बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा निरंतर, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। ये आपने विजुलाइज कर लिया ना? हमने क्या किया यहां पे? हमने क्या किया? इस पानी को एक ट्यूब से इसमें वापस डाल दिया। कैन यू डू दैट? तो ये एक सिस्टम बन जाता है, इट बिकम्स अ सिस्टम। प्लीज पे अटेंशन। उसको मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। सो व्हाट डिड वी डू? यहां पे जो पानी बह के चला जा रहा था, इसको हमने क्या किया? ए रुको रुको रुको, वापस इसमें आ जाओ। तो क्या होगा? दिस एनर्जी विल कीप ऑन सर्क्यूलेटिंग। यस और नो? Similarly, this energy that is coming out from this infinite potential energy in a linear fashion, we say, hey, wait, don't go linear. If you're going, let's go in a circular path. एक हमने पाथ दे दिया इसको, तो ये घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, क्योंकि सोर्स इज इनफाइनाइट एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर, एन एनर्जी स्ट्रक्चर। गेटिंग इट? अनंत घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, लाइक दिस। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। टुगेदर it makes something called atom, or you can use the word creation, or from energy we go towards mass. It's a structural unit of mass. atom बनता है। atom क्या है? अणु क्या है? what is atom? You go and see and go in the electron microscope, it is what? It is the tandav going on of electrons around protons and neutrons. And you go deeper into it, these are nothing but energies, energy fields. Yes or no? इसी चीज को साइंस इलेक्ट्रॉन में देखती है। और दिस इज व्हाट द योगीज अंडरस्टूड इन द सांख्य फिलोसफी। नाउ लेट मी गिव यू द टर्म्स विच वी हैव बीन हियरिंग सिंस आवर एज। बचपन से ये शब्द सुनते हैं हम। सांख्य फिलोसफी में, सांख्य द ओल्डेस्ट फिलोसफी, योग से का इंस्पिरेशनल जो फिलोसफी है, उसमें ये जो बिंदु है, ये है पुरुष और शिव और प्योर
अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस। शिव, शिव तत्व अनमैनिफेस्टेड, ध्यान कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे शिव को, है ना। शिव जी जो ध्यान कर रहे हैं इज नथिंग बट द अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस, पोटेंशियल एनर्जी, पुरुषा, which is not moving, which is not manifesting, it is there। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। नाउ जब क्रिएशन होना होता है, वी नीड व्हाट, वी नीड बूम, वी नीड बैंग, वी नीड अ स्पार्क, वी नीड अ किक। बम बम बोले, बम बम बोले, बोल बम, इस बम वर्ड जो तंत्र वगैरह में देते हैं, बम पकड़ बम, बम पकड़ बम बम, व्हाट डू दे डू? दिस बम इज नथिंग बट when you are bored of static energy, आपने कहा चलो एनर्जी निकालो, एंड दिस इज व्हाट बिकम्स शक्ति, प्रकृति, which is consciousness in motion, energy. And together, Shiva and Shakti makes, when Shiva and Shakti, they are together, there is creation। ये अगर ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? चलो बोल दिया, थ्योरेटिकल ज्ञान है, मुझे क्या लेना देना। दिस एटम, these atomic structures, these energetic structures, बहुत इजी लेवल लेवल पे बोल रहा हूं। वेन दे आर फार अवे, इट इज द स्पेस एलिमेंट। दे कम क्लोजर, एयर। दे कम फर्दर क्लोजर, फायर और प्लाज्मा। फर्दर क्लोजर, वाटर एंड अर्थ। सो these structures manifest as the five elements। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा, बहुत बेसिक बता रहा हूं। इसमें बहुत डीप में भी है, महत, चित्त, बुद्धि, मनस, अहंकार, वो सब में नहीं जा रहा, वरना हम डिविएट कर जाएंगे। हम फिलोसफी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसमें जब गहराई में जाएंगे, उपनिषद वगैरह में, इसकी मैनिफेस्टेशंस बहुत तरह की होती हैं। सांख्य फिलोसफी में जब व्हेन वी अंडरस्टैंड सांख्य, देयर इज लॉट मोर टू इट। गुनास, क्वालिटीज में मैनिफेस्ट होता है ना। बहुत टाइप्स के मैनिफेस्टेशंस होती हैं। कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, एलिमेंट्स, ये सब हम नहीं जा रहे। हम बस ये बोल रहे हैं, दीज एटम्स व्हेन दे आर फार अवे, स्पेस, क्लोजर एयर, क्लोजर फायर, क्लोजर वाटर, क्लोजर वेरी क्लोज, एंड ग्रोस अर्थ, so that is mass। At the end, mass is also energy, energy is also mass। Is it clear? So let me tell you this once again। शिव, कण कण में शिव बसते हैं, हाँ बसते हैं। दिस स्ट्रक्चर, जब आप देखेंगे, एस शेल, पी शेल, ऐसे शेल्स होती है जहां पे एनर्जीज मैनिफेस्ट होती हैं। यही जो स्ट्रक्चर है, यही हमारे नटराज है, डांसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। when you contemplate, when we are into the yogic process, this is what we need to realize। आप भी शिव हैं, मैं भी शिव हूं, हम सब शिव से आए हैं, शिव में विलीन होना है। और ये जो प्रकृति का जो मैनिफेस्टेशन है, ये हमारी देवी हैं। इसलिए देवियों के अलग अलग रूप होते हैं। महाविद्याएं जो हैं, दश महाविद्याएं कॉस्मिक होती हैं। नव दुर्गा हमारी जो स्ट्रक्चर्ड एनर्जी होती है, उसको समझते हैं। इसलिए तांत्रिकों के लिए कॉस्मोस को पूजा करते हैं, दश महाविद्याओं की। कॉस्मिक है, वो डायरेक्शनल है। और स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर वो हमारी नवदुर्गा होती है, जो हम सांसारिक लोग पूछते हैं। इसलिए नवरात्रि जो 4 पॉइंट्स है हमारे ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, उसमें एक एनर्जीज को टैप इन करते हैं, इसलिए हमारी नवरात्रियां होती है। देवियां, व्हाट इज देवी? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अलग अलग गुनास की देवी, अलग अलग एनर्जी की मैनिफेस्टेशन। वो है फेमिनिन एनर्जी विच इज मैनिफेस्टिंग, प्लेइंग अराउंड। हे माया, महामाया बोलते हैं ना देवी को।
कि माँ तो आप माया हो। माया मीन्स व्हाट? इट इज नॉट द सेम, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। व्हाट इज नॉट माया? माया क्या नहीं है जो हमेशा सेम रहेगा? समथिंग दैट विल ऑलवेज बी द सेम। हु इज दैट? शिवा। व्हाट इज शिवा? द unmanifested consciousness inside your atoms, inside my atoms, inside the clothes, inside the air, inside everything। शिव 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 शिव। इस स्टेट में जब आप पहुंच जाएंगे, आप अपने आप योगी हो जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात पे। लुक एट योर हैंड, लुक एट योर बॉडी, लुक एट योर क्लोथ्स। है ना? हाथ देखिए। क्या है ये चीज? व्हाट इज दिस? योर हैंड, योर बॉडी, दिस इज अ सेल। यस, इट इज मेड अप ऑफ टिश्यू। स्किन इज अ टिश्यू ना। स्किन को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे, क्या दिखेगा आपको? क्या दिखेगा? सेल दिखेगा। चलिए, आपके हाथ में आपने देखा, अपना शरीर देखा, कपड़ा देखा, योर क्या दिखेगा? इट विल बी योर हैंड्स के अंदर ऐसे ऐसे टिश्यूज दिखेंगे आपको, सेल्स दिखेंगे। यस, ठीक है। सेल्स के अंदर हम जाएंगे तो क्या दिखेंगे आपको? ऐसे सेल्स होती हैं, ये न्यूक्लियस, ये वो, ये ऐसे सेल्स दिखेगा। सेल्स के अंदर जाएंगे, आपको क्या दिखेगा? बायो मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ऐसे ऐसे ना। ये हमारे जैसे साइटोप्लाज्म, लिपिड्स, ऐसे ऐसे होते हैं। अलग अलग बायो मॉलिक्यूल्स दिखेंगे आपको। कार्बन एटम कैसा होता है? ऐसा ऐसा होता है कार्बन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है कार्बन एटम का। है ना? याद है केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री याद है? हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन्स, फिर उसमें नाइट्रोजन। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन डीएनए, ये सब न्यूक्लिक एसिड्स। तो अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमारे शरीर में, सेल्स में और भीतर जाएंगे और भीतर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे। एट द एंड, फील दिस, डोंट जस्ट लिसन। योर हैंड्स, our tissues, our cells, our molecules are nothing but these elements, these atoms, and the atoms are nothing but energy. So, आप क्या हो? You are nothing but a combination of few atoms in the cosmos. सोच, फील करके देखिए इसको। अगर आपने रियलाइज कर लिया ना, अभी आप लिबरेशन चल, आप बैठे बैठे एनलाइटनमेंट हो जाएगी। बाबा को देखा है जमीन से उड़ते उड़ते हुए? देखा है ना? नहीं देखा? गाना तो सुना है, आजकल पाँव नहीं पड़ते जमीन पे मेरे, बोलो देखा है कभी उड़ते हुए। आई लव दिस सॉन्ग। इट इज अ फैक्ट। यू ऑल आर लेविटेटिंग राइट नाउ, aren't you? You're sitting on the ground. What is happening? It's a dense energetic barrier, that's it. Your hips, your body, your bones are nothing but atoms, nothing but molecules, and molecules are what? एटम्स के अंदर स्पेस कितना होता है? एटम्स के अंदर 99.99999 टाइम्स 9, इतना सारा एम्प्टी स्पेस है। 0.0000001% मास है। सो यू standing on the ground is actually, you know what? I'll draw a structure. That is you and your hips touching the ground. This is a small energetic thing, and this entire place is just space. Please pay attention. This is your hips touching the ground, and this is the ground on which you are. This entire thing is space, 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 space. Once your awareness goes in this level of space, कितना सारा स्पेस है? यहां से लेके यहां तक कितना सारा स्पेस है? इट इज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्पेस। यू विल ऑटोमेटिकली levitate. You all are levitating right now. Is aren't you? You're not touching anything. Because we are aware of just the body, you're not feeling it. तो जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धियां जो होती हैं, क्या होता है? पढ़िए इस बारे में। अनिमा, अनिमा क्या होता है? एकदम सूक्ष्म रूप में चले जाते हैं। अनिमा, महिमा, गरिमा, व्हाट आर दीज? नथिंग बट योर अवेयरनेस
गोइंग टू दैट सूक्ष्म लेवल, ओह मैं स्पेस फील कर पा रहा हूं, एक बार ये अपना अनुभूति कर ली ना, जिंदगी में डिप्रेशन नहीं होगा। काहे को डिप्रेशन, हम तो एनर्जी है भाई। और जो जोगी बाबा लोग साधु में वो रहते हैं ना, इस अवेयरनेस में रहते हैं, और कुछ नहीं, नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। You realize you are levitating on, you don't feel, this is, we are on the gross level of physical bodily awareness and hence the sufferings. The moment you look at life in a cosmic level, जिसके लिए हम योग प्राणायाम करते हैं, भीतर जाना एंड ऑल दैट, यू आर लेविटेटिंग राइट नाउ, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड यू जस्ट प्लेइंग अराउंड विद एनर्जी, यू नो उसी में आए हैं, उसी में जाएंगे। एक मंत्र पढ़ते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चलिए इसको भी जरा समझने का प्रयास करते हैं कि विराट कॉस्मोस में, इनफाइनाइट कॉस्मोस में जो पूर्णम है, इट इज कंप्लीट। पूरा इतने सारे एटम्स में, इट इज इनफाइनाइट, इज कंप्लीट। फ्रॉम इनफाइनाइट आई टेक आउट सम एलिमेंट्स, सम एनर्जी, एंड आई एम क्रिएटेड। आई एम ऑल्सो कंप्लीट, दैट इज ऑल्सो कंप्लीट। आई हैव टेकन समथिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, it is still infinite. And now, if I return something to infinite, it is still infinite. At the end, infinite remains. Deep but very interesting. So, you are one with everything. This is what oneness, Shiva Tattva, enlightenment, nirvana, whatever you call it is. This process of knowing it is Jnana Yoga. If you were Mirabai, you don't need all this. You would have done bhakti, bhakti, bhakti and come to the same state of vileen ho jana, is the same state of awareness. मैं बचपन में सुनता था मीराबाई की कहानियां, हमारी माताजी सुनाती थी कि कृष्ण को देख के विलीन हो गई। मैं कैसे हो सकता है यार ये, हाउ इज इट पॉसिबल लॉजिकली, हम ज्ञान योगी ना, ज्ञान योगी के लिए दीज स्टोरीज डोंट मेक सेंस। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड शी एक्सपीरियंस द स्टेट ऑफ वननेस विद द अल्टीमेट कॉस्मोस, एंड दैट इज विलीन होना। आप बैठे बैठे हो सकते हो यहां पर, विराट रूप देख लिया अर्जुन ने श्री कृष्ण का, व्हाट वाज दैट, अज्ञान, उन्हें दिव्य दृष्टि मिली, व्हाट वाज दैट, nothing but activation of the pineal gland through which you get the realization, oh my god, the Shri Vishnu is everything, oneness, your in everything is just like a dynamic equilibrium, a cosmic play going on, we are just playing our small roles। इस स्टेट के रियलाइजेशन में अगर आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उसी को इंसान योगी बोलता है। उसके बाद भले ही आप पापड़ी चाट इंजॉय करो, गोलगप्पे इंजॉय करो, सांस बहू दे के है करो, और जरा सा मस्ती करो, ये खेल रहे हो भैया, लाइफ से खेल रहे हैं। दिस रियलाइजेशन हैज टू बी देयर कि अरे अनंत, अनंत, दिस अनंत, आप भी उसका एक छोटा सा पार्ट हो। दिस रियलाइजेशन रोज 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 सुनते सुनते करते करते, क्या पता एक दिन बूम, ऑफ दैट इज एनलाइटनमेंट। सरल भाषा है, हम, वी आर डूइंग अ कॉस्मिक प्ले, वी हैव मैनिफेस्टेड फ्रॉम द एनर्जी and again we'll dissociate back. Now we enter into astrology कि यार हमने ये रूप तो ले लिया, हु डिसाइड, किसने डिसाइड किया कि मेरे दांत बड़े होंगे, मेरा स्किन ऐसा होगा, मैं इंडिया में जन्मूंगा, शिमला में बैठूंगा, वाई एम आई नॉट इन लॉस वेगस, वाई एम आई नॉट इन दुबई, और मे बी वाई एम आई नॉट इन सीरिया। आज जब मैं चावल खा रहा था, बड़ा बढ़िया मम्मी ने बनाया, एक बहुत, एक राधुनी बोल के एक स्पाइस होता है जो नहीं मिलता दिल्ली में भी शिमला में भी, तो मम्मी ने राधुनी के साथ, एक बंगाली स्पाइस होता है, शिमला में बैठ के राधुनी वाला दाल खाया, बड़ा मजा आया, तृप्त हो गया। मेरे पहाड़ी दोस्त बोल रहे हैं यार क्या दाल है, और मैं खाते खाते सोचा कि यार भगवान की क्या कृपा है, हर क्षण आपको ग्रेटिट्यूड होना मांगता है। इसका भी कारण बताऊंगा। सीरिया में बेचारे वो थैला फेंक रहे हैं, वो चावल क्या खा रहे होंगे बेचारे, मैं क्या नसीब लेके आया हूं कि मैं ये ग्रहण कर पा रहा हूं। इसमें हम एस्ट्रोलॉजी समझते हैं। Now let us understand this whole thing once again and get into the concept of astrology। ये भाग्य कौन लिखता है, हु, ये विधाता है कौन, हु इज दिस विधाता, हु इज दिस अकाउंटेंट, हु इज कीपिंग अ ट्रैक। इट इज अ नेचुरल लॉ, इज अ यूनिवर्सल लॉ, नथिंग लाइक, नथिंग मोर, नथिंग लेस। सो एज
you are created right now. You have taken a proper shape from the energy. We'll come to that. And you have manifested as the five elements. Okay? You or me are nothing but these five elements in a unique combination. Okay? And through this device, you are constantly creating what? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कर्मास. ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. You think, you eat, you drink, you enjoy, everything is nothing but karma. All your feelings, all your thought, all your food, all your emotions, they're all karma. For example, I consume a glass of wine right now. Okay. It has a chemical karma? Yes. But if I consume a glass of kadha, it has a chemical karma? Yes. I switch on the television and I see a lovely documentary on Devra Babaji, and in my mind, some beautiful thoughts come. It's a karma? Yes. But I turn on the TV and watch a very nonsense serial and have some emotions. Karma? Yes. I'm sitting right now complaining about love. अरे यार ये बीमारी है. अरे यार मेरे पैर में दर्द है. अरे मेरा. So what am I doing? I'm creating an energy. Every thought, please write down. Thought is an energy impulse. Every thought is your karma. Every feeling is a karma. So don't think कि मंदिर में जाके दान करने से ही ठीक होता है. No. मेरे शब्दों से आपके माइंड में कुछ विचार आ गए. इट इज मी. मैंने कुछ बोला एंड इट क्रिएटेड अ केमिकल चेंज. कर्मा. योगानंद जी बोलते थे बीइंग सैड इज अ सिन. दुखी होना पाप है. दुखी होना पाप है. क्यों? कर्म. इसलिए योगी इज अ पर्सन जो ये न्यू कर्मास क्रिएट नहीं करता सिचुएशन में. Before the class was starting, it was a panicky situation. Light was not there. You saw it was dark. The light was fluctuating. I was using the data whatsoever. बहुत सारे problems थी. है ना? वो problems आप पे हावी हो रहा है कि नहीं? That is what is important. Am I creating new karmas? Or even if I'm doing it, how much it is going within? I'll again explain this. So, in a particular day, we have so many thoughts, we have so many feelings, we have so many emotions. And as I said, energy cannot be created nor destroyed. This is you. And you're creating a blueprint of so many energies in your entire life. Good, bad, ugly, पेपर पढ़ के गुस्सा आया, पॉलिटिक्स देख के इरिटेशन हुआ, बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, नेगेटिव फीलिंग हुआ, वॉट एवर. The whole day you ate something. What did you eat for lunch is your karma. Did you have coffee or chai is your karma. So all these energy impressions are stored like a record. Where? In the Akash Tattva, in the cosmos. Because energy is not created nor destroyed. Yes or no? Every speech, every thought, every feeling, every emotion create हो गया वो. आपने आज खिचड़ी खाया, खाना खाया, उसके बाद आपके पड़ोस से झगड़ा हो गया. सो यू क्रिएटेड दैट एनर्जी बाय योर कॉन्शियस दिस थिंग इनटू अ एंग्री एनर्जी. सेम पड़ोसी से झगड़ा हुआ, आपने रिएक्ट नहीं किया, अरे चल जान दे कोई बात नहीं मैं बैठ के मस्त, एंड आपने अपना माइंड को चेंज कर दिया. यू क्रिएटेड डिफरेंट एनर्जी. सो इट इज यू हु इज क्रिएटिंग ऑल दीज काइंड ऑफ एनर्जी पैटर्न्स. Yes, which is not created, not destroyed, it is remaining there. Yes or no? So in your life, you create, I create, we all create tremendous amount of karma.
गुड बैड अगली बात की बात, कर्म अकर्म विकर्म ये सब बात की बात है. Karmas we are constantly creating. It is our homework to do it. Now, as we create those karmas, and then it is a huge karma, let's call it karma pool. कर्मा का एक बड़ा सा पूल रेडी हो गया. पूल समझते हैं, स्विमिंग पूल जैसा एक टंकी, बड़ा सा टंकी ऑफ कर्मा क्रिएटेड, जो दिखता नहीं है वो है. वो कार्मिक कार्मिक पूल क्रिएट हो गया. चलिए, कार्मिक पूल क्रिएट कर दिया. उसके बाद क्या किया, शरीर ने बोला चलो मेरा हो गया टाइम, चिप खत्म, एंड लेट अस गो बैक इनटू द फाइव एलिमेंट्स. तो आपका मृत्यु हुआ, मृत्यु होगा फाइव एलिमेंट्स में, द बॉडी गोज बैक. ये तो पता है हम सबको, यही होना है. एक नंबर ऑफ, बचपन से एक नंबर ऑफ श्वास दे दिया कि भैया तुम्हारा इतना श्वास होगा. आपने श्वास ले लिया, श्वास का नंबर खत्म, डेथ. सो एवरी ब्रेथ इज वॉट, अ स्टेप टूवर्ड्स डेथ. है कि नहीं? तो जोगी मनुष्य क्या करता है, ए सांस बचाओ और लंबा जियो. Deep, but think about this. It's a very, I'm giving you a lot of thoughts for the weekend. Every breath is a step towards death. अब every breath is what? You're burning out. श्वास is burning out. इसलिए योगी अपने श्वास को कंट्रोल करके लॉन्जिविटी ले आता है जीवन में. उसी को हम प्राणायाम बोलते हैं. स्वर योग में ज्ञान होता है इसका. They can manipulate their breaths and hence live longer. कॉस्मिक लेवल बीमारी आएगी नहीं आएगी बात की बात. एक नंबर ऑफ ब्रेथ्स है, 100 ब्रेथ्स है आपके पास, उससे आप अपना आयु डिसाइड करो. 100 ब्रेथ्स आपको कब तक लेना है. डॉगी जैसे कुत्ता लेता है और कितना लंबा जीता है, जल्दी मर जाता है. कछुआ लेता है धीरे धीरे और लंबा जी जाता है. तो आपको कब बीमारी लगेगी, व्हेन विल यू फॉल सिक, ब्ला 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 ब्ला, ऑल दैट स्टोरी डिपेंड्स ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न्स. Physical, mental diseases whatsoever. You have X number of breath written. In that breath, you have created many thoughts, many emotions, many feelings. Yes or no? Many chemical karma. Yes or no? रोज हमको भैया क्या बोलते, फ्राइड चिकन मोमोज खाना है, और वो गंदा वाला जो एकदम चटनी होता है ना, एकदम तेज वाला मेयोनीज के साथ लेना है. दैट इज योर केमिकल कर्मा. और नहीं नहीं, आई विल टेक समथिंग सात्विक, गजक पट्टी मूंगफली पट्टी आया है वो खाते हैं, कोई बात नहीं. यू डिसाइड योर केमिकल कर्मा. ठीक है. Then the body goes away, and then what happens is the soul, उसका नेचर समझाने के लिए बहुत गहरा जाना पड़ेगा, let's not go that far. Then it says okay, I am going back, and it goes back and back and back, and because it's the five elements go back to earth, fire, water, it goes back. The soul comes and meets the supreme soul. जो हमारा सुप्रीम सोल है, इसको हम परमात्मा बोलते हैं. परमात्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है. ठीक है. आपकी आत्मा जो है, इसका भी एक बहुत गहराई और सटल एनर्जी है. एनर्जी से ही परे है ये इट इज नॉट एनर्जी. आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है मृत्यु के बाद. ठीक है. ठीक है. द सोल मीट्स द सुप्रीम सोल. कैसे समझे इसको, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आपने बचपन में गुब्बारे उड़ाए ऐसे ऐसे करके, बलून्स, वो जो आता है ना, हमारे शिमला के रिज मैदान में ना ऐसे ऐसे उड़ाते रहते हैं, फू करके पूरा सुंदर गुब्बारे उड़ जाते हैं. देखा है आपने, है ना? मैं तो अभी भी उड़ाता हूँ, मेरे पास अभी भी, मैं खेलता हूँ, बड़ा मजा आता है खेलने में. आई टोल्ड यू ना, योगी, योग का मतलब ना आप बड़ा, मतलब यू शुड नॉट ग्रो अप, दैट्स योग. सो दो हैव यू सीन दिस बलून्स, ऐसे बबल्स, नॉट बलून्स. सो द बबल रेपुटेशन, देयर वाज अ पोएम आल्सो बेस्ड ऑन दिस. सो व्हाट इज द बबल? बबल आर ऑफ डिफरेंट शेप, कुछ बड़ा होता है कुछ छोटा होता है, पर अंदर उसके हवा होती है ना? तो इसी प्रकार हमारा भी शरीर जो है, our body is nothing but a bubble. It has taken different shapes, of course, a more complex bubble, but when it bursts, it goes one into the same atmosphere. Yes or no? होता है कि नहीं? हमारे साथ भी वही हो रहा है बस, और सारा गीता का ज्ञान इसी पे बेस्ड है. न्याय फिलॉसफी अगर आपने सुना है, हमारे षट दर्शन में न्याय सूत्र है, एक है कनक कुंडल न्याय. सुना है ये नाम कभी, कनक कुंडल न्याय?
हमारे जोगी जी ने बड़ा सुंदर समझाया था कि अलग अलग जो ये जो होता है ना सोना, आपके पास भी सोना है, इधर भी सोना है, इधर भी सोना है। किसी का ऐसा वाला ज्वेलरी, किसी का वैसा वाला ज्वेलरी, किसी का ऐसा ज्वेलरी, किसी का अलग अलग शेप्स ऑफ ज्वेलरी है, बट एट द एंड वो सोना है, अलग अलग फॉर्म्स में है। लकड़ी है पर अलग अलग फर्नीचर्स हैं, पर एट द एंड इट इज वुड। एक और उदाहरण कि भाई समुद्र है और समुद्र के किनारे अलग अलग पडल्स बने हुए हैं, अलग अलग गड्ढे हैं, अलग अलग कप्स है। अलग अलग कप में मैंने पानी ले लिया और द मोमेंट द वेव कम्स आई गिव इट बैक। सो यू आर जस्ट अ कप, यू आर जस्ट अ बबल, यू आर जस्ट अ फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। एट द एंड यू आर द सुप्रीम। समुद्र का वेव आएगा, पडल्स को सब वापस चला जाएगा। तो वही आत्मा परमात्मा का खेल है। अलग अलग कप्स हैं हम, अलग अलग बबल्स हैं हम, अलग अलग कुंडल है, अलग अलग ज्वेलरी है सर, है असली में सब एक ही धातु के। आप समझ रहे हैं? तो दैट वननेस इज द आत्मा का परमात्मा से मिलन, राइट? द एनर्जी, द आत्मा गोज एंड बिकम्स वन एंड सेज आह, वाह, कितना मजा, यहां पे हम भगवान से एक हो गए, परमात्मा से एक हो गए। यू रीच अ स्टेट ऑफ साइलेंस। बट नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम। भगवान के पास तो मिल गए, परमात्मा बोलता है अरे सुन सुन सुन, ए रुक रुक रुक, ए रुको, क्या हुआ भाई? तुमने देखो क्या रायता फैलाया है, कहाँ है रायता? ये है हमारा कर्म का रायता। ये हमने क्रिएट किया अपना कर्म का पूरा एक बड़ा सा पैटर्न, विच इज नॉट डिस्ट्रॉयड, विच इज जस्ट देयर। सो द परमात्मा says the atma, listen, you first finish that and then come back. वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। समझिए इसका मतलब क्या है। बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। ये जो लिखा है ना, इसका ये मतलब है। हमको तो बड़ा मजा आता है सुनने में। तो ये चुनरी में दाग तो बात की बात है, तो ये कर्म का जो दाग है तो फिनिश तो हमें करना है ना, हमारा होमवर्क है। सो द परमात्मा सेज लिसन, यू गो बैक, फिनिश द होमवर्क एंड देन कम। एंड दिस इज द एंटायर होमवर्क, जो रायता हमने कर्म का फैलाया है, कर्मा पूल का। सो वी सेड ओके, चलो हमको जाना है, विदाई हो रही है। नहीं हर छूटो ही जाए, बाबुल मोरा, नहीं हर छूटो रही जाए। ये सब जो हम सुनते हैं ना शास्त्रीय संगीत में, यही है कि फ्रॉम दैट फिर से इस लोक में हमको आना पड़ता है। क्या लेके आना पड़ता है? अरे भैया, इतना बड़ा एक होमवर्क खत्म करना है। व्हाट इज द होमवर्क? दिस एंटायर कर्मा पैटर्न्स विच हैज टू बी फिनिश्ड। नाउ, नाउ यू हैव टू टेक बर्थ। बराबर? बर्थ तो लेना ही है ना, तभी तो खत्म होगा। उस समय ये सारा, प्लीज पे अटेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है ये समझने की। उस समय अलग अलग ग्रह नक्षत्र अलग अलग पोजीशंस में है। ये अलग अलग कलर्स का मैं एनर्जी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? डिफरेंट प्लैनेट्स आर इन डिफरेंट पोजीशंस, गिविंग अ कंप्लीट मैट्रिक्स ऑफ a unique energy which is falling onto the Mritlok while you are taking the birth. This unique energy pattern which is falling and creating your birth is nothing but the same energy that you have created. This energy is same. So you decide your birth, कि मेरे जन्म के समय कौन से प्लैनेट्स कहाँ रहेंगे, ब्ला 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 ब्ला। इट इज नथिंग बट a divine accountancy that keeps this energy in mind. It is the natural law of nature, law of universe, or law of energy. This energy is not created nor destroyed, but manifested as your birth chart. And that is what astrology says. So, you are born with a particular cosmic energy blueprint, which is nothing but a replication, a reproduction, a resonance of your karmas, past life karmas. And once again, we are born with a complete homework
ऑफ कर्मा, ऑफ कार्मिक होमवर्क, जिसको हमको करना है फिनिश, जिसको हमें करना है फिनिश, ताकि सोल इस कर्मा के बैगेज से मुक्त हो जाए, और इसको हम मुक्ति करते हैं, लिबरेशन कहते हैं, कि हम इस कार्मिक साइकिल से मुक्त हो जाए। दिस इज द पर्पस ऑफ द सोल। सारे साधु महात्मा पुजारी पंडित सब कुछ इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस मुक्ति। अब कैसे हो मुक्ति, कैसे करें मुक्ति? अलग अलग साइंसेस हैं इसके लिए। योग है, एस्ट्रोलॉजी भी मुक्ति प्रदान, भक्ति में बोलते हैं मुक्ति प्रदायिनी। माँ काली का जो खड़ग होता है वो इस कर्म को काटने के लिए होता है। कर्म काटो, कर्म काटो, है ना? क्या हुआ, फ्रीज क्यों हो गया? मुक्ति मिल गया इसको? हम्म। लेट इट इम्बाइब, एक बार सोचिए इस बारे में। तो यू हैव सिलेक्टेड योर फादर, यू हैव सिलेक्टेड योर मदर, you have selected the abuses in your life, you have selected the pleasures of your life, you have created everything and you are still creating it. Yes or no? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसी को दोष दे सकते हो? किसी को नहीं सकते। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कार्मिक क्लियरेंस होता है। क्यों होता है? एक्सेप्टेंस मोड में आने के लिए। क्या पता मैंने कुछ किया है, उसका मुझे भोग हो रहा है, और यही चलता रहता है। और ये अनंत ज्ञान है, ये सत्य है, यही सारे उपनिषद, सारे गीता का सार यही बोलता है। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं, बोलते हैं नहीं? मैं तुम में हूं, कण कण में शिव है। दिस रियलाइजेशन इज वॉट मेक्स यू योगी। इन एवरी मोमेंट यू रियलाइजिंग इट। कल पड़ोसी से झगड़ा करेंगे, तो देख के जेलसी होगी, इंस्टेंटली बजेगा, ए रुक 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 रुक, कर्मा क्रिएट हो रहा है, रुक जा। ये कर्मा हमें खत्म करना है, हम बढ़ाते रहे हैं। स्ट्रेस लेके कर्म बढ़ा दिया, चिंता करके चिता समान। ऑफ कोर्स इट्स चिता समान, यू इंक्रीजिंग योर कर्मा मैन, यू कम टू फिनिश द कर्म। इसलिए जो बोलते हैं कर्मण्यवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, द होल स्टोरी सेज कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर। बिकॉज बिकॉज द होल गीता सार रिवॉल्व्स अराउंड दिस, कि हे अर्जुन, it is your daitva as a kshatriya to understand your dharma and finish your karma. That is where the whole Gita starts. You can't run away from your karmas. Then finish it. Because karma will not leave you. N number of stories, N number of stories are there revolving around it. भगवान भी वंचित नहीं रहे उससे। आपने सुना ही होगा कि द वे वेन अवतारित होकर जब भगवान आए, श्री कृष्ण आए, उनका जो एंड हुआ, इट वॉज, you know how it happened, right? In Dwarka, he was sitting with his beautiful red feet, and by mistake, a hunter kind of, put an arrow, and that's how the mortal body of Shri Krishna left. It was nothing but what happened in the earlier Yug, where he killed Bali in the same way, when he was in the form of Bhagwan Sri Ram. So the karma will keep happening. तो जो भी हो रहा है हमारे साथ होगा। You finish it. Finish the karma without creating the new karma. That is कर्म योग। कर्म कर, फल की अपेक्षा ना कर। बोलना आसान है, समझना जरा सा गहरी बात है। करो खेल, प्ले अराउंड, फिनिश, एंड वंस यू कम इनटू दैट जोन यू विल नेवर हैव स्ट्रेस। कर्म कर रहे हैं हम, बस पढ़ाना मेरा कर्म है, कुछ मिला है मुझको, आई एम डूइंग इट, खत्म कहानी। कोई एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं, अपना कर्म करते जा। तो इसको कर्म योग बोलते हैं। कि भाई रोटी बनाना है, अपने घर वालों के लिए सस्टेन करना है, मेरा कर्म क्या है आज? आई हैव टू बी कर, आई हैव टू नो ना। माय पेरेंट्स आर देयर हु आर एजिंग, व्हाट इज माय कर्मा? आई हैव टू सस्टेन देम, टेक केयर ऑफ, दैट्स माय कर्मा राइट नाउ। देन इफ आई एम अवेयर ऑफ माय चार्ट्स, इफ आई एम अवेयर ऑफ माय लाइफ, आई नो कि इसको हम बढ़ाएंगे कि नहीं। दैट इज योर पर्सनल डिसीजन। नोबडी, नो स्क्रिप्चर, नो सोसाइटी विल टेल यू व्हाट टू डू। यू शुड नो व्हाट टू डू।
तो मुझे क्या करना है? Making a PowerPoint presentation is equally spiritual as making a lovely dinner for your family, as important as earning finances to sustain your family, is as spiritual as sitting in the Himalayan cave and meditating upon this. Everything is karma. The concept of Karma Yoga says, or meditation says, what is meditation? Meditation means I will do it with thoughtless awareness. What is meditation? Another definition, write down. Meditation mane thoughtless awareness. इस क्षण मैं आप लोगों के सुंदर सुंदर चेहरे देख के बस अपना कर्म कर रहा हूं एज अ यंग योगी who's been studying these things and contemplating upon these things. I don't really care about anything else. I'm in a state of meditation. I'm meditating upon teaching the class. You have to meditate upon taking the class. हाँ, आप समझ रहे हैं? मैं टाइम अभी जाके देखता हूं, अरे हो गया टाइम, चलो। अभी तक टाइम नहीं देखा था मैंने, देखना चाहिए। हे टाइम क्या हुआ, ये क्या, नो 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 नो। So this is karma. I'll take all the questions. Please write down. पहले दिन questions नहीं लूंगा मैं. I'll take many questions at the end of one set. All your lovely questions. We have 3 hours of question answers. Write it down. If you, any question that comes, we'll discuss. Not today. Let us complete one set. We'll have many. Just contemplate upon these facts. These are all in the Upanishads and all amalgamation of the type paths of yoga. There are 4 paths. Amongst them, I'm talking about karma. Think first. Let it contemplate. Before the question comes, think and see. Yeah? I'm here. I'm doing a karma. Am I taking stress? सुबह उठ के जब योगा करता कराता हूं मैं, it is the best thing in my life. Not because it is sustaining me. It is sustaining me, of course. I'm not denying the fact. I have to sustain my family and whatever. But it gives you a purpose and your karma. It is my karma. Without expectation. There are 100 people, 1,000 people, one student I will teach. Without expectation. That is where the karma yoga comes. I'm a soldier, I have to go and protect my country. This clarity. I'm a housewife, I have to sustain my family with good food, blah, blah, blah. Whatever. We are all here to do our roles. That role has to be done efficiently. That's what makes a yogi a yogi. Please don't think coming to Rishikesh and escaping your the duties will make you. That's what happened to Arjun. The Gita starts there. Hey, Krishna, you're telling me to kill my grandfather? I'd rather take sannyas and become a sage. Muni ban jaun main. Shanka, that doubt came into his mind. And that is where the Arjun, हर हमारे, the moment of a little stress, अरे क्या कहाँ फंस गए हैं यार. No, 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 no. You have to finish it. The karma will not go away anywhere. But you find your niche, find your clarity, find your purpose. These sciences will just help you do that. It's not an astrology for अरे आगे क्या बता दो भाई भैया मेरा हाथ दिखा दो. This is the most cliche way of looking at astrology. ये क्या हाथ दिखाना इधर उधर? No, 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 no. जरूरत ही नहीं है. अपना बेसिक समझ आ जाए, ध्यान करे, साधना करे, पर्पस क्लियर हो, खत्म कहानी. फिर खेलिए बढ़िया से. Your morning yoga sadhana will help you realize this fact. We are just listening to it right now. But your entire being will be in accordance to it when you realize the fact. You're okay. 3 things will happen here. First, I'll be aware of it. Okay, I'm aware that I'll be a वात person. कितना भी प्रोटीन पाउडर पियो मेरे मसल्स नहीं बनने वाले, कोई बात नहीं. मुझे ऋतिक रोशन नहीं बनना तो मैं स्ट्रेस ना लूं. फर्स्ट इज अवेयरनेस कि मेरा ये वाला प्लैनेट यहां बैठा हुआ है, ये होगा लाइफ में. आई एम अवेयर ऑफ इट. सेकेंड पॉइंट, आई एक्सेप्ट इट. आई एम एक्सेप्टिंग इट. Whatever is in your life, you accept it. Third, we are human beings. So, we are conscious beings. We can change the karma. That is the only benefit you and we have as human beings than probably a crow or a dog or a cat or a mule. I can change my karma. That's the only thing that makes us, we are aware.
तो ये जो इतनी सारी योनियां क्रॉस करके ह्यूमन जन्म को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी for us to get this knowledge and change the karma and do something for your soul's evolution. That is yoga, any form of yoga. That you're not looking at a smaller picture. हाँ, यंग है, कौन सा कॉलेज मिला, अरे कॉलेज मिला, टेंशन है, एग्जाम लिया, एग्जाम लिया, अब क्या करना है, कमाना है, कमाना है, शादी करना है, सारा जिंदगी। अरे ये छोटा सा वाला पिक्चर देख रहे हो, बड़ा पिक्चर क्या है? That is what the bird's eye view of life is. That's what makes us spiritual. That amongst thousands and thousands of life, I have taken one of this life, and what have I done with this opportunity? Ask yourself. आज रात को बैठ के सोचना कि मुझे ये जिंदगी मिला है छोटा सा, इसका मैं क्या कर रहा हूं, इसका मैंने, what have I done? That is your swa adhyaya, self introspection. What have I made of this opportunity? What is my karma? What are my feelings? What are my thoughts? Have I made it beautiful and joyful and I'm just doing it? Or I'm still stuck up in इसका क्या, उसका क्या, इधर उधर चपड़ चपड़, all that. आप स्वयं से पूछिए कि हाउ आर योर कर्मा पैटर्न्स, हाउ आर योर थॉट, सुबह उठ के क्या फीलिंग्स आती है, क्या थॉट्स आते हैं इन द ह्यूज, एंड दैट इज व्हाट योग गिव्स यू, द बर्ड्स आई व्यू. There's so many lives. This life, what am I doing? And you won't, if you do them, there's another concept of regression of the past life. You will see the same souls आसपास ही आते हैं, आपके माँ बाप भाई पत्नी से सोल कनेक्शन होता है ना, वो सेम एनर्जी पैटर्न्स आते रहते हैं आसपास, उन्हीं के साथ चलता है. और यही आता है केतु, जो आपको मोक्ष प्रदान करता है. तकलीफ बहुत देता है केतु, इज द मोस्ट, हर्ट्स यू द मोस्ट. पर वैराग्य जो होता है केतु देता है, इसका हम समझेंगे क्यों. और केतु इज द प्लैनेट विच ब्रिंग्स दोस कर्मास इनटू दिस लाइफ. इसी इसी तरह से आप केतु को समझेंगे तो आप केतु को बैलेंस कर पाएंगे. हाउ विल यू गेट डिटैचमेंट? आई एम एब्सोल्युटली डिटैच्ड विद माई पेरेंट्स, माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर्स एंड एवरीथिंग. आई नो वी आर जस्ट डूइंग अ लवली लवली रोल इन दिस लाइफ. अब वी ऑफन डिस्कस डेथ. इट माइट साउंड वेरी वियर्ड बट चेंजिंग द क्लोथ्स, आई डिस्कस माई डेथ. अच्छे से मरना है भैया, भोगना नहीं है. क्योंकि वो तो एक चेंज होगा ना, चेंज ओवर होगा. क्या तकलीफ, डू यू थिंक इन दैट मोमेंट ऑफ कोर्स यू विल फील सॉरी, यू नॉट पत्थर. स्वामी विवेकानंद जी का एक स्टोरी बता के मैं खत्म करूंगा. वेदांत का नॉलेज लेके तो उन्होंने पूरा ये ज्ञान दुनिया को दिया, वापस आए अपने बंगाल में, और उनके बहुत क्लोज एक गुरु भाई का देहांत हो गया. और स्वामी जी एकदम बिलबिलाते रोने लगे, बहुत तकलीफ, बहुत रोने लगे. तो उनके कुछ स्वामियों ने बोला, तुम तो विवेकानंद हो, विवेक का एकदम, यू आर द एपिटमी ऑफ विजडम, यू नो दैट वी आर जस्ट सन्यासीज, यू शुड बी डिटैच फ्रॉम इट. तुम्हें तो रियलाइजेशन है सोल का. व्हाई आर यू सो दिस थिंग? बोलते, बिफोर ऑल दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग. इट इज अ नेचुरल इमोशन. इसको मैं कैरी नहीं करूंगा इस दुख को. पर इस मोमेंट में दुख मांगता है. पत्थर नहीं हूं मैं, इंसान हूं. सो आपके दुख, ये रसे, these are all the rasas, different rasas, emotions. you you have to do the, of course कोई मर गए है करके हंसेंगे नहीं हम, तो तकलीफ होगी, बट उसको कैरी नहीं करना. स्वामी जी ने कहा है, डू ग्रेट थिंग्स बट डू नॉट लेट देम मेक एन इंप्रेशन ऑन टू द सोल. व्हेन यू रीड विवेकानंद यू गेट टू नो द एसेंस ऑफ इट. बड़े बड़े काम करो, पर भीतर सोल में एक इंप्रेशन नहीं करना है. करो ना, किसने मना किया? इसमें आप क्या होगे, डिटैच रहोगे, नथिंग विल अफेक्ट यू. किसी का आना, किसी का जाना, किसी का प्यार होना, किसी का दुख होना, कोई आया कोई गया, सब माया है. वो शिव तत्व में जब आप एक हो जाएंगे, दैट पोटेंशियल एनर्जी इफ यू टैप इनटू, दैट इज द परमानेंट. एक बहुत सुंदर रविंद्र संगीत है, चिरो शाखा. हमारे एक सन्यासी जी मिले थे यहाँ योगदा सत्संग के, उन्होंने कहा, तुम बंगाली, इतना सुंदर सुंदर तुम्हारा वो है, कैसे सब ट्रांसलेट करे समझ नहीं आता. एक चिरो शाखा है, छेड़ो ना, मतलब हमें छोड़ना मत. चिरो मीन्स फॉरएवर, सखा मीन्स फ्रेंड. वही तो चिर सखा है, वही रहेगा मेरे दुख में भी तुम, अनाथ के नाथ तुम.
अबल, जिसके पास बल नहीं उसके बल हो तुम ही तो हो सब। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ंग त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसका मतलब क्या है? तुम ही हो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, माँ बाप भाई प्यार ज्ञान अर्थ, तुम ही हो सब। उस ये भक्ति का एसेंस आ गया जिसमें हम बाहर देखते हैं, भीतर बाहर एक ही है, वॉट एवर इज आउट इज इन। दिस रियलाइजेशन व्हेन इट कम्स, ये सत्संग से आता है, ज्ञान से आता है, भक्ति से आता है। हम सुबह राजयोग करते ताकि आप रिसेप्टिव हो जाए इस ज्ञान के लिए, क्योंकि पात्रता नहीं बनेगी वरना। तो सुबह हम उठ के कुछ नहीं करते, पात्रता रेडी करते कि ज्ञान भीतर से आए। परा विद्या अपरा विद्या शुड कम फ्रॉम विद इन। एवरी मोमेंट दिस रियलाइजेशन शुड बी देयर दैट वी आर जस्ट प्लेइंग अ गेम, a cosmic video game. And the moment I want to switch it off, I switch it off. So nothing will affect me in the physical world because I'm in the cosmic world. इसलिए काफी योगियों को आपने इस मुद्रा में देखा होगा, या आंखें ऐसे करके, लाहिरी महाशय का फोटो से देखेंगे, वो उस जगत में है भीतर वाले, बाहर उनको पता है। इसलिए द टर्म कॉल्ड परमहंस। परमहंस कौन होते हैं? व्हाट इज परमहंसा? हैव यू सीन अ स्वान? स्वान क्या करता है? पानी में रहता है, पर उसका जो शरीर है पानी उसे टच नहीं करता। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्वान। जो हंस होता है ना, हंस, इसलिए माँ, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, वो हंस पे विराजमान होती हैं। क्यों होती है हंस पे? हर एक जानवर का, हर एक प्रकृति का एक एक हमको समझना जरूरी है। कार्तिक का मोर है क्योंकि मोर सबसे डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन मोर से पता चलता है। सुबह 3:30 बजे एव एव करता है, सो डिसिप्लिन है कार्तिक। माँ सरस्वती हंस के ऊपर हंस, तो हंस जल में रह के भी जल उसके शरीर को नहीं छूता। तो वही ज्ञान अल्टीमेट ज्ञान है कि इस संसार रूपी जल में रह के भी ये जल हमारे भीतर आत्मा को नहीं टच करेगा। बाहर जो करना है करो ना, कभी कभार प्यार करना है प्यार करो, किसी को बजाना है बजाओ, वो आपका स्टोरी है, दैट इज योर। ये भी जरूरी है, इफ यू आर अ सोल्जर यू हैव टू गो एंड फाइट एंड मारपीट करना है, बचाना है, लड़ाई करना है। इट इज नॉट अधर्म, इट इज धर्म। बट भीतर उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। Whatever your role is designed, you have to know that. And this realization is the epitome of spiritual realization. And anybody who reaches the highest form of this realization is called Paramhans, Ramakrishna Paramhans, जो सांसारिक गतिविधियों में रह के भी वो उनको टच नहीं करेगा। हम भी बन सकते हैं। हमारा ड्यूटी है ये करना है, सब कुछ करो वरो एंड देन गो विद इन। सो परमहंस। ठीक है जी। कुछ गया या फिर जरा बाउंसर गया? मेरे को पता नहीं, मैं तो आई डोंट हैव एनी नोटबुक, आई जस्ट माँ सरस्वती बैठी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, चाय पीता हूँ और सिर्फ बकबक करना शुरू, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ। सो मोस्टली इट्स लाइक दैट, आई डोंट प्रिपेयर व्हाट आई हैव टू स्पीक, सो दैट्स हाउ इट्स फ्लोइंग। आई एम एब्सोल्युटली oblivious अबाउट एवरीथिंग। सो आनंद में रहे, हंसते रहिए बिना किसी मतलब के, तो एस्ट्रोलॉजी अपने आप लाइन में आ जाएगा, है ना? तो इस भाव को, इस भक्ति को, इस फीलिंग को सदैव भीतर रखिए, और अपने आप से एकांत में, बड़े बड़े सन्यासी लोग बोलते थे एकांत में, टॉक टू योर सेल्फ, डोंट ओवर एनालाइज, डू लिटिल इंट्रोस्पेक्शन, दैट व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ कर्मा एम आई क्रिएटिंग द होल डे। रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, डोंट वरी, इतना चिंता है ही नहीं कुछ, बड़ी बड़ी चीजें हो जाएंगी, चिंता नहीं होगी। दिस इज वेयर, दिस इज व्हाट डिफाइंस योगी। यू प्ले अराउंड, खेलो कूदो मस्ती करो, अगर यंग उम्र है पार्टी करो मस्ती करो, किसने मना किया है? बट प्रभावित नहीं होना कि अगर नहीं मिला तो हाय हाय हो गया, नो 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 नो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कुकी कहाँ गया मेरा? चॉकलेट कुकी आता है यहाँ पे, बड़ा पसंद है, मैं छुपा के रखता हूँ, मेरे दोस्त चोरी कर लेते हैं। उनसे मैं ऐसे छुपा के रखता हूँ। खेल रहे हैं भाई, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, ले जा। सेम एज विद द बैंक अकाउंट। है। और जब आप इस स्टेट में रहेंगे ना, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, जो आपको जेन्युइनली रिक्वायर्ड होगा, ये युक्तेश्वर गिरी जी कहते थे, अगर यूनिवर्स में है भी नहीं ना, वो बन जाएगा आपके लिए। पर इस स्टेट में रहना पड़ेगा आपको।
मैं आज ही सुबह एग्जांपल दे रहा था, मुझे ट्रिमर चाहिए था बियर्ड का यार, जरा सा बियर्ड बियर्ड बनाए। कब खरीदे यार, हम खरीद अपना खर्च नहीं करते अपने पे, हम ये लोकल किसी का ऐसे ही चलता है, तो अपने आप आ जाता है गिफ्ट जो चाहिए। पिताजी क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को जब जरूरत होती है उनको पता होता है ना क्या चाहिए। तो वी हैव टू बी इन दैट स्टेट कि यू नो व्हाट आई नीड। योगानंद जी का एक बड़ा सुंदर कोटेशन था कि हे भगवान, मैं क्या मांगू तुमसे, तुम्हें तो पता है। तो उसके लिए वो कनेक्शन होना जरूरी है। इवन द यू डोंट नीड टू प्रे कि तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए, द थॉट ऑफ इट एंड इट मैनिफेस्ट्स। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन सब बात की बात है, फर्स्ट इज अलाइनमेंट विद दैट कॉस्मिक सेल्फ। ठीक है जी। तो कुछ हैवी बातें थी, आशा करता हूं ज्यादा हैवी ना हो गया हो, क्योंकि सरल है एट द एंड, इसको रियलाइज करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर मोमेंट याद करना है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भाई आदि शंकराचार्य जी, है ना। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये फोर वेदांतिक प्रिंसिपल है, सब कुछ विल मेक सेंस वंस इट यू रियलाइज द ट्रूथ दैट वी आर जस्ट डूइंग अ कॉस्मिक प्ले। ठीक है। So with this, we will continue tomorrow. Tomorrow we will understand the Ayurvedic implications, that how these energies got manifested into the five elements, the Panchatattva, the Pancha Mahabhut. And as we go deeper into the subject of how the 9E is manifesting into the 5 M's and hence creating the entire patterns of our lives. फिर हम सोमवार से शुरू करेंगे वात दोष, कि भाई ये जो वात है शरीर में, हाउ इट इज मैनिफेस्टिंग, पंचवात, वात, पित्त, पंचपित्त, एंड इट विल गो ऑन। अब आप लोग आ ही गए हैं, अब एक और कन्फेशन में कर देता हूं। मैं ना डेट वेट देखता नहीं कब खत्म होगा कब होगा, जितना मन करेगा उतना पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई नेवर चेक कि आज ये है आज वो है, जितना मन करे कभी, इट विल जस्ट गो। ना आप फंस गए आप। ठीक है जी। आनंद आनंद पूर्वक करेंगे, जैसे जो होगा। ठीक है। So let the energies decide. We're just doing our place. All right. So with that, I would like to thank you once again. We will see you all in the morning. जरा सा मोटिवेट करिए। हम शिमला के ठंड में उठ जाते हैं सुबह, आप तो उठ ही सकते हैं। ठीक है। ओके, आई विल स्पीक लिटिल बिट मोर इन इंग्लिश। ऑलराइट, आई विल डू दैट। सो ओके 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 ओके। ठीक है। हम एक्चुअली एज टू स्ट्रीट बाहर पढ़ाते थे ना, तो जरा सा इंग्लिश हिंदी में मजा आने लगा है मेरे को। आई डू इट इंग्लिश हिंदी बोथ, सो दैट ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड। वेरी सिंपल इंग्लिश, विल कीप इट ऑलराइट। चलो, थैंक यू सो मच। स्लीप वेल, इंट्रोस्पेक्ट एटलीस्ट 5-10 minutes, टॉक टू योर सेल्फ, लुक एट द आसमान देखिए। मेरी नानी बोलती थी आसमान देखने में बड़ा मजा आता है, और पूरे आसमान में हमने एक छोटा सा अंश ग्रहण किया है, उसको रेवरेंस, है ना। एक सुंदर टैगोर का गाना है, हम तो रविंद्रनाथ वॉज एनलाइटन्ड। बहुत बहुत सुंदर वो है, आकाश भरा सूरज तारा, इट्स लवली सॉन्ग। वो बोलते हैं कि कितना कुछ है, इतना कुछ आसमान है, तारे हैं, सूर्य है, तारा है, उस पे मुझे आपने मेरा स्थान दिया है। विश्व जागे अमर गाने, ब्यूटीफुल सॉन्ग, है ना, कि इस विश्व में आपने मुझे मेरा स्थान दिया है। धन्यवाद। इस स्थान के लिए धन्यवाद। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, गुरु प्रणाम, जय गुरु, नमो नारायण। एक और एडवाइस, फोकट में हंसिए, जेन्युइनली। आपको कारण मिल जाएगा हंसने के लिए, स्माइल करने के लिए। जस्ट स्माइल एट लाइफ, यू विल सी यूनिवर्स रेजोनेट्स। जो देंगे वो एम्पलीफाई होकर वापस आता है। जस्ट लुक एट एवरीबडी एंड स्माइल एट लाइफ, इट विल कम बैक। God bless you all. We'll see you all in the morning, and tomorrow we'll continue. Let it sink in. We'll again talk about the Ayurvedic implications of it. Jai Guru, Jai Ma, Namo Narayan. Write down the questions. We'll have a question answer session comfortably. Hari Om Tat Sat. Pranam. Namaskar.